So friends, last time we discussed about the potentiometer, its concept, its meaning and its principle. We obtained the principle as potential at a distance L is proportional to L, or you can have we have the formula sigma into L, where sigma is the potential gradient, as well as this as E rho upon R plus L rho plus small r into L. ये obtain किया था हमने. Now and then we saw about the three uses of potentiometer. उसमें पहला use है to find unknown EMF. Let's see how we measure unknown EMF. तो potentiometer वायर क्या था? एक resistive wire AB connecting a battery having EMF E, internal resistance R and a resistance box having resistance R. ये potentiometer. Now the battery whose EMF we want to find out, the unknown EMF, the battery whose EMF we want to find out, ध्यान से समझना, the battery whose EMF we want to find out ये हो गया E1. ये E1 हमें ढूंढना है. Positive of this battery is connected to point A, negative is connected to galvanometer and then to a jockey. Again jockey comes, वही विल्सन ब्रिज में जिसको यूज किया था वही, बराबर है. फिर से एक बार, जिस बैटरी का EMF ढूंढना है, द अननोन EMF बैटरी, लेट्स से E1, positive of that battery is connected to A, negative to the galvanometer and then to a jockey. Now we slide the jockey on the wire and obtain such a point C1 at a distance L1 where galvanometer shows zero deflection. यानी कि null point obtain किया, null point obtain किया. यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, null point बोलेंगे. तो null point obtain कर लिया. तो नल पॉइंट कहाँ पे? C1 पे, एंड C1 कितने दूर है? तो A से L1 डिस्टेंस पे. फिर से एक बार, पोटेंशियोमीटर with the potential, this is the main battery of the main circuit of the potentiometer. Okay, so this is a primary cell. The secondary cell whose EMF we want to find out, the cell whose EMF we want to find out, its positive terminal is connected to A, negative to the galvanometer and then to the jockey. Jockey is slided on the wire and such a point is obtained where galvanometer shows zero diffraction. Yani we obtain the null point on the wire. Suppose the distance of null point is L1. So at the point C1, at point C1, potential will be VL1. C1 point पर potential VL1 होगा, V at a distance L1. And यहाँ पे दूसरी तरफ potential कितना है? E1 है, बराबर है. As galvanometer shows zero diffraction, as galvanometer shows zero diffraction, galvanometer zero बताता है कब बताएगा? When there is no current in this branch. इस ब्रांच में कोई करंट नहीं था. अब करंट नहीं है. करंट कब नहीं होता है? जब पोटेंशियल एट बोथ द एंड्स इज सेम. करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इट डज नॉट फ्लो व्हेन द पोटेंशियल्स आर इक्वल. तो करंट नहीं मिलेगा. galvanometer showing zero मतलब करंट नहीं आ रहा है इस ब्रांच में. इस ब्रांच में करंट नहीं मतलब दो एंड के पोटेंशियल सेम. यहाँ पे VL1, यहाँ पे E1, तो VL1 इक्वल टू E1 होगा, बराबर है. तो therefore we can say E1 will be equal to potential at distance L1 sigma into L1. सिग्मा कहाँ से मिलेगा? ये रहा फॉर्मूला, E rho upon R plus L rho plus small r into L1. यानी देखो, सिग्मा ब्रैकेट की सारी क्वांटिटीज तो नोन थे, इज अ कांस्टेंट वाज नोन फॉर अस. L1 मेजर कर दिया लेंथ फुट रूलर से, वी गेट E1 अननोन EMF मिल गया. ओके, सो व्हाट वी डू इज, जिसका EMF ढूंढना है उसका पॉजिटिव कनेक्ट करो A पे, नेगेटिव टू galvanometer एंड देन टू अ जॉकी. सेकंड स्टेप, slide the jockey on the wire and obtain such a point where galvanometer shows zero diffraction, यानी कि obtain null point. Measure the distance of null point, put in the formula, you'll get the unknown EMF. अब तुम बोलोगे फिर से ये EMF कैसे हो गया सर? ये इस बैटरी का EMF होगा, जरूरी थोड़ी है. हाँ हो गया ना. बैटरी वाले ब्रांच में नो करंट इज फ्लोइंग, यहाँ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब बैटरी E1 के लिए इट्स एन ओपन सर्किट कंडीशन. तो जो मिलेगा उसका EMF होगा. स्वीट एंड सिंपल. ओके, फिर से देखते हैं क्या करने का. जिस बैटरी का EMF ढूंढना है, लेट्स से E2, उसका पॉजिटिव कनेक्ट करो A पे, नेगेटिव टू अ galvanometer एंड देन टू अ जॉकी. स्लाइड द जॉकी on wire and obtain a point C2 where galvanometer shows zero diffraction and obtain the null point. Measure the distance of C2. Measure the distance of C2, that is L2 suppose. तो EMF क्या हो जाएगा? E2 will be equal to sigma into L2, that is E rho upon R plus L rho plus small r into L2.
Clear? This is how we measure the unknown EMF. Sliding the wire on the sliding the jockey on the wire, obtaining the null point, डिस्टेंस मेजर करो, फॉर्मूला में डाल दो, काम खत्म. अब अगर इसका वैल्यू वेरी भी हो रहा हो तो भी हम जिस मोमेंट पे रखते हैं, जो डिस्टेंस पे आता है नल पॉइंट, बस वही हो गया, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना ईएमएफ मिल जाएगा. एंड अगेन करंट जीरो है, इसलिए नो करंट इन दिस बैटरी. जिसका ईएमएफ ढूंढ रहे हैं उस बैटरी में नो करंट, इसलिए इट्स प्योर लीड्स ईएमएफ, नॉट टर्मिनल वोल्टेज. ओपन सर्किट कंडीशन हो गई ना. सो पोटेंशियोमीटर इज एबल टू अचीव ओपन सर्किट कंडीशन एंड हेंस मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल. ये इसका एक यूज हो गया. E1 मिल गया, E2 मिल गया. तो इसके बेस पर से E1/E2 क्या आएगा? E1/E2 क्या आएगा? Will be L1/L2. ओके, कंपैरिजन भी हो गया. कंपैरिजन के you for comparison you need not find the value of E1, you need not find the value of E2. सिंपली लेंथ का रेशियो ले लो, E1 लगाओ, L1 मेजर करो, E2 लगाओ, L2 मेजर करो, L1 L2 का रेशियो ले लो, दैट इज द कंपैरिजन E1/E2. ओके, तो इसका यूज क्या? टू कंपेयर द ईएमएफ? नहीं, इसका मेन पर्पस क्या है? E1 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू E2. यहाँ पे वन ऑफ द बैटरी इज टेकन ए स्टैंडर्ड सेल. स्टैंडर्ड सेल के बारे में यू स्टडीड इन केमिस्ट्री, दैट इज सच अ सेल हुज ईएमएफ इज फिक्स, इट डज नॉट वेरी. तो स्टैंडर्ड सेल ले लो, ईएमएफ फिक्स है एंड नोन है, E2 मिल गया. सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लेके L1 L2 एक्यूरेटली मेजर करो, तो ये पूरा एक्यूरेटली आ जाएगा, तो E1 विल बी ऑब्टेन विद मोर एक्यूरेसी. तो कंपैरिजन मेथड, ये कंपैरिजन मेथड हो गई. कंपैरिजन मेथड में क्या करना है? सेकंड यूज उसका कंपैरिजन मेथड. उसमें क्या करना है? एक बैटरी लगाओ, एक सेल लगाओ, L1 ऑब्टेन करो, दूसरा सेल लगाओ, L2 ऑब्टेन करो, L1 L2 का रेशियो ले लो, यू गेट द कंपैरिजन. बराबर है. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, तो दिस इज आल्सो मेथड. जिसका ईएमएफ ढूंढना है उसको पहले L1 डिस्टेंस फाइंड करो, उसका नल पॉइंट, फिर स्टैंडर्ड सेल का नल पॉइंट ढूंढ लो, पुट इन द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ तो फिक्स होता है एंड नोन वैल्यू होता है, इससे यू गेट इवन मोर एक्यूरेटली. इस मेथड से, ये मेथड में फर्स्ट के बदले सेकंड यूज में ईएमएफ अननोन ईएमएफ इज ऑब्टेन मोर एक्यूरेटली. बराबर, क्योंकि क्वांटिटीज इन्वॉल्वड आर लेस एंड स्टैंडर्ड सेल्स हैं, इसमें क्वांटिटीज इन्वॉल्वड आर मोर, सो चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ जाएंगे. ज्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्वड है, इससे ज्यादा एरर होने के चांसेस है. तो दिस इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ एंड सेकेंडली टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल. ये दो यूज इसके खत्म हो गए. So now let's go on for the third use, that is finding the internal resistance of a cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो उसके लिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा. पोटेंशियोमीटर वायर AB कनेक्टेड टू द बैटरी हैविंग EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेन सर्किट हो गया, एंड द रेजिस्टेंस बॉक्स, ये मेन सर्किट हो गया. अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है, द सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, ये E1 हो गया. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ढूंढने का है. इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ एंड देन टू अ जॉकी, एंड इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया A पे, सेम वे जो आगे करते थे. फिर यहाँ पे पैरेलल में सेल के, ये अननोन ईएमएफ वाले सेल के पैरेलल में, इसका ईएमएफ नोन E1 है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसमें से रेजिस्टेंस R निकालेंगे. इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया एंड एक की लगा दी, एक की कनेक्ट कर दी पैरेलल में, पैरेलल टू दिस बैटरी. इतना एडिशनल आएगा. अभी द बैटरी विच वी हैव कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट, दिस इज द मेन सर्किट, एंड इन द सेकेंडरी सर्किट जो बैटरी लगाई उसके बाद पैरेलल में वी प्लेस अ रेजिस्टेंस बॉक्स हैविंग रेजिस्टेंस R एंड अ की के, ये दो लेते हैं हम लोग. बराबर है. फिर ये जॉब की तो है यहाँ पर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कीपिंग के ओपन, की के ओपन हो गया, तो ये पार्ट तो रहा नहीं सर्किट में, ओनली EMF is there, and sliding the wire on the sliding the jockey on the wire, we get a point, let's say ये मिला हमको C1 at a distance L1 from A. तो नल पॉइंट कहाँ पे है? नल पॉइंट at distance L1. अब यहाँ पे as this resistance is not there, ये इसका EMF हो जाएगा, तो EMF E1 will be equal to sigma into L1. Let's say equation 1. Clear? फिर नेक्स्ट स्टेप, कीपिंग के क्लोज्ड, की क्लोज कर दी, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्लोज कर दिया, या नाउ की क्लोज हुआ तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स कम्स इन द सर्किट. फिर जॉकी को मूव करते हैं एंड वी फाइंड दैट
null point is obtained at another point, let's say C2 lying at a distance L2. तो अब null point कहाँ मिलेगा? null point at distance L2. तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू L2 एंड लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ टर्मिनल वोल्टेज V. तो बोलेगा ऐसा क्यों किया? द रीजन इज ऑन कनेक्टिंग दिस की ये सर्किट भी ऑपरेटिंग में आ गई, यानी कि नो डाउट गैल्वेनोमीटर शोइंग 0, मतलब ओपन सर्किट कंडीशन है, पर इतने पोर्शन में करंट विल फ्लो इन दिस लोअर लूप, करंट विल फ्लो लाइक दिस. इस ईएमएफ के कारण इस लूप में करंट फ्लो होगा. अब ये करंट जब फ्लो होगा बाहर नहीं जाएगा नो डाउट, और यहाँ फ्लो होगा तो बैटरी में से करंट आएगा, बैटरी में से करंट आई विल फ्लो, मतलब क्या होगा? बैटरी का भी नो लॉन्गर ओपन सर्किट कंडीशन एंड सो व्हाट इज ऑब्टेन्ड इज द टर्मिनल वोल्टेज. तो सेकंड केस में जब की क्लोज करेंगे तो ये सेकेंडरी सर्किट का भी ये लूप विल स्टार्ट वर्किंग, तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा एंड करंट फ्लो होगा, इसलिए ये बैटरी विल नो लॉन्गर बी इन ओपन सर्किट कंडीशन, सो व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड विल बी इट्स टर्मिनल वोल्टेज V. क्लियर? गॉट इट? 1 divided by 2, what we get is E1 upon V equal to L1 by L2. Let's say equation number 3. Now also E1 को क्या लिखेंगे? E1 क्या होगा? तो करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R. E1 को क्या लिखेंगे? I इंटू R प्लस R, या फिर चलो I इंटू R प्लस R, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R, एक एंगल ये हो गया. एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो IR भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज भी अवेलेबल इज IR. इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, देयरफॉर IR will be equal to I into R plus R. Therefore let's not equate it, let's take the ratio. Therefore E1 upon V will be equal to, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो what you get is R plus R upon R. ओके, यहाँ E1 by V है. Let's say equation number 4, equating 3 and 4, equating 3 and 4, तो क्या आएगा? R plus R upon R is equal to L1 by L2, and on the left side we can write R by R minus, sorry, plus 1, R by R plus 1 is equal to L1 by L2. हमारा टारगेट क्या है? फाइंडिंग द स्मॉल r, तो R by R is equal to L1 by L2 minus 1, यानी कि स्मॉल r will be R into L1 by L2 minus 1. ये हो गया फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, ये डेरिवेशन हो गया इसका, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? R is equal to R into L1 by L2 minus 1. करना क्या है? पहले की ओपन रखें, लेंथ L1 मेजर करें, फिर की टू क्लोज रखे, की के क्लोज रखे तो ये रेजिस्टेंस R कंसीडर होगा. अब लेंथ L2 आएगा. ओके, तो ये जो R निकाले वो R इंटू L1 by L2 minus 1, दैट गिव्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. डायरेक्टली याद रखना तो यूं रखते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग यूज करेंगे तो वैसे ही करेंगे. ये की ओपन करके L1 मेजर करेंगे, की क्लोज करके L2 मेजर करेंगे, एंड रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना वैल्यू वो लेके यहाँ पे रख देंगे. क्लियर अबाउट दिस? ये हो गया हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. अच्छा, अब यहाँ पे चलो फाइन, टर्मिनल वोल्टेज की बात हो गई ना, वही करेंगे. दैट्स ऑल इन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो नाउ we have completed the use of potentiometer. One small topic you have to take regarding potential gradient. From principle of potentiometer, from principle of potentiometer, we had obtained VL is equal to E rho upon R plus L rho plus small r into L. बराबर है? इसको हमने सिग्मा L बोला था, where sigma is the potential gradient. तो here इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? पहली बात तो sigma will be equal to VL by L. Potential difference point length on the potentiometer wire is called potential gradient. या फिर more exactly increase in potential per unit distance on potentiometer wire is called potential gradient. यानी वो on the wire पर यूनिट डिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है, पर सेंटीमीटर पर मीटर कितना इंक्रीज होता है वो.
पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसी चीज हमने 2 बार पढ़ी हुई है आगे 11 में। एक तो लिया था हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। दूसरा लिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। अब ये तीसरा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, इसका यूनिट क्या बनेगा? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यानी वोल्ट अपॉन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आई थिंक सो, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय लेंथ। अच्छा, ये हो गया इसका डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा? E rho upon R plus L rho plus small r, where rho is the resistance point length of the wire. वायर के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट लेंथ जिसका यूनिट होगा ओम पर मीटर। ओके, ये हो गया सिग्मा के बारे में पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या? लोअर द सिग्मा, लोअर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोर इज द एक्यूरेसी, मोर इज द एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा डिटेल में वैल्यू मिलेगा। सिग्मा की वैल्यू अगर 0.1 वोल्ट पर मीटर आती है तो एवरी मीटर यू गेट 0.1 वोल्ट। मिनिमम कितना आएगा? 0.1 वोल्ट। पर अगर इसको डिक्रीज करो 0.01 तो यू गेट मोर डिटेल वैल्यू, 2 डिजिट तक जा सकते हो। तो जितना सिग्मा की वैल्यू कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एंड जितना एक्यूरेसी ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं देयरफॉर मोर इज द सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिविटी यानी सेंसिटिविटी यानी कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव मींस इवन अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड। तो जितना सिग्मा कम उतना एक्यूरेसी ज्यादा, उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ऑफ द मेजरमेंट यानी ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो आपको सिग्मा को कम करना पड़ेगा। हाउ टू डिक्रीज सिग्मा? टू डिक्रीज सिग्मा एक मेथड है इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज लेंथ है यानी कि वायर का लेंथ बढ़ा देते हैं, इंक्रीज लेंथ है ऑफ द वायर, या फिर और इंक्रीज रेजिस्टेंस आर। फॉर्मूला में देखो तो सिग्मा के फॉर्मूला में आर यहाँ पे एल यहाँ पर है, तो लेंथ बढ़ाओ या आर बढ़ाओ, दोनों काम हो सकते, दोनों से हो सकता है ये। इसलिए नॉर्मली पोटेंशियोमीटर वायर्स आर टेकन लॉन्गर, इसलिए नॉर्मली लॉन्गर पोटेंशियोमीटर वायर्स आर प्रेफर्ड इन ऑर्डर टू हैव मोर एक्यूरेसी। नॉर्मली द स्कूल डिवाइस apparatus हैज 2 मीटर लेंथ, पर कई कोई स्कूल में, 1-2 स्कूल में देखा हुआ है 4 मीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर वायर भी होता है। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दैट फिनिशेस द पोटेंशियोमीटर टॉपिक।